Okay, chapter number 8. It is last chapter of our first book, gravitation. Gravitation is the force of attraction between two bodies of the universe, any two bodies of the universe. And if one of the body is Earth, then we call it gravity. Earth ke force ko gravity we call it. And otherwise, gravitation is the force between two bodies in the universe. And it is the gravitational force or gravity. Because of that, we survive, in fact. How we survive? Because due to gravity, atmosphere is there. Gravity holds the atmosphere. We have the sufficient gravitational force to keep the atmosphere bound to the earth, and hence gas particles are not able to escape. They need a lot of RMS speed to escape from the earth, which is not present. So atmosphere is there. Unlike moon pe there is no atmosphere because RMS speed of gas particle is more than the escape speed of the particles. We'll see escape velocity in this chapter. So first we'll see Newton's universal law of gravitation between the two bodies. Complete universe is, bound by the gravitational force, and Newton gave the universal law of gravitational force, which is as follows. Newton's universal law of gravitation between the any two bodies of the universe. Suppose we have the M1 here, M2, two masses M1 and M2, separated by distance r. So both will attract each other with the equal magnitude of force F each, irrespective of their masses. Masses can be unequal, but force of attraction will be equal. Both will apply equal and opposite force. Okay. Magnitude of force on each point mass due to the other one is given by, which is depending upon constant of proportionality, which is G, and product of masses M1, M2, and inversely proportional to square of the distance. Okay. All right. So let me see this point. Every body in the universe attract every other body, which is directly proportional to the product of their masses, M1 into M2, and inversely proportional to square of the distance between them. That is R square, 1 by R square. Inverse bolte because it is 1 by R square. Okay. So as I told you, both will apply equal and opposite forces. Magnitude of force will be, formula comes this. G क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. G की वैल्यू मैंने नीचे लिखी है. इसमें कोई डाउट है आपको इस फार्मूले में? दिस वाज इन आवर 9th स्टैंडर्ड आल्सो. G की वैल्यू आई विल गिव यू लेटर. This formula is very clear. Bigger the masses, more will be the force. Bigger the distances, less will be the force. Distance अगर डबल हो गई तो force 1/4 रह जाएगा, because 2 square आ जाएगा यहाँ पर, तो 1/4 हो जाएगा. If you increase the distances double, force will be 1/4. If you keep the distance half, r/2 कर देंगे as compared to previous value, तो 1/4 square, 4 ऊपर आ जाएगा. Force will be 4 times. If you bring both the masses to the half of the distance, force will become 4 times. That is what is the inverse square law. ये inverse square law होता है ना, 1 by R square. Got it? Getting or not? Yes sir. तो G की वैल्यू देखते हैं. G की वैल्यू इधर है. ओके. उससे पहले वेक्टर फॉर्म में, कैन वी सी इन द वेक्टर फॉर्म आल्सो? वेक्टर फॉर्म में भी देख लेते हैं. G की वैल्यू बाद में लिखते हैं. वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? You see here in vector form also, this formula, how the vector form it is written. There is a particle M1 at position, okay. Particle M1 as position vector R1. So R1 is the position vector of M1. PV stands for position vector. We are done in the vectors, position Yes, vector, and M2 की position vector R2 है. ठीक है.
तो दिस इज R1, दिस इज R2, ये उनके बीच का गैप है R, which is from triangle of vector addition, which will be equal to R2 minus R1, because this plus this, R1 plus R will be equal to R2, तो R1 को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो दिस ऑलरेडी वी आर डन इन द, वहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा था यहाँ पे, बट दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द वेक्टर बिटवीन बोथ। ठीक है, नाउ फोर्स ऑन M2, M2 पे फोर्स किधर रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स विल बी लाइक दिस बाय M1, M1 उसको इधर फोर्स लगाएगा लाइक दिस, तो G_M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्शन देखो R इज दिस साइड, R इज दिस साइड, R वेक्टर देखो ये वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और फोर्स अपोजिट है, इसलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पर, बिकॉज R इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर R, ये R है देखो, कैन यू सी, जस्ट लेट मी मेक इट बिगर एंड शो यू, देखो इफ यू रिमेंबर वेक्टर, ये R है दिस साइड, वेक्टर R इज दिस साइड, उसका यूनिट वेक्टर R कैप हो जाएगा, एंड फोर्स ऑन M2 इज अपोजिट, फोर्स ऑन M2 इज F, ठीक है, तो बोथ आर अपोजिट, फोर्स इस तरफ है और R इस तरफ है, तो ये R कैप है, तो इसलिए माइनस आ गया, R cap is the unit vector of R. Both F and R are in opposite direction. Therefore, since force is attractive, है ना, तो इस तरह से लिखते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर R cap आ जाएगा, विच इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर R. R क्या है, R क्या है, दिस R2 minus R1. It is given वेक्टर फॉर्म में भी अपनी टेक्स्ट बुक में दिया, तो वी शुड बी knowing, if it is taught to you in the class, they may ask you, write in the vector form of Newton's universal law of gravitation force. Newton was sitting underneath the apple tree, which is still surviving in the, it is near to London, still it is there. He was sitting there and apple fell down on his head, and then he got the clue of this 1 by R square का clue उसको वहां से मिला था, F inversely proportional to R square का clue, when apple fell on the tree, on his head from the tree, 1 by R square का आइडिया वहां से उसने लगाया था। All right, so let's write the value of G also. यहाँ तक okay है, no problem, बोलिए, it is okay? No problem, sir. Yes, sir. Okay, तो G की वैल्यू देखो, G is the universal gravitational constant, universal, whatever the value of G is at Earth, same will be at Moon, same will be at Sun, same will be at any, same will be at any planet of the other galaxies, which is, how much is the value? 6.67 into 10 to the power minus 11, very low value in terms of SI unit. It is 10 to the power minus 11 will make it very, very small value, है ना, 0.00010 will come, then 667 ऐसा आएगा, तो very, very low value. यूनिट क्या होगी, यूनिट वी कैन फाइंड आउट, R स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, M1 M2 को नीचे भेज दीजिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे M1 into M2 kg स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो इट विल कम इन न्यूमरेटर तो kg minus 2, तो G will have the unit this, और डायमेंशन क्या होंगी इसकी, डायमेंशन ऑलरेडी वी हैव डन इट, डायमेंशन याद है क्या थी, फोर्स की कितनी होती है, ML T minus 2 R स्क्वायर की L स्क्वायर और नीचे M स्क्वायर, तो डायमेंशन आएंगी M minus 1 L3 T minus 2, ये डायमेंशन आ जाएंगी, already we have done it in the unit and dimension. Yes, sir. ठीक है, तो
we will write some point about this Newton's gravitational force. ये जो force है इसके कुछ points लिख सकते हैं. Yes, we can write. Unit क्या होगी? What will be the unit of force? Of course, Newton. Newton, sir. Unit will remain Newton only. Formula may change, but unit will not change. Force है तो unit रहेगी. ठीक है, यहाँ तक clear है सब points? Yes, sir. Okay, so we'll learn some points about the for this force. What kind of force it is, and what is its nature. देखते कौन. This force is conservative force. देखिए ये points, they will be helpful for you, even if they may not be asked points, but you remember them. This force is conservative force. Conservative force कौन से होते हैं? That forces work done by which is independent of the path followed by the objects. जैसे डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है और इसका वर्क डन भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा. दैट काइंड ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस. इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द बॉडीज, वेदर यू कीप द बॉडीज इन एयर, दो मासेस जो हमने लिए थे ना, कीप इट इन एयर, देन आल्सो सेम फार्मूला, कीप इट इन द वाटर, देन आल्सो सेम फार्मूला. Force will not change, independent of medium. Whether you put it into the water, then also force will remain same, or you keep it in air or keep it in the vacuum, force is not going to change. That is the meaning of independent of medium between the bodies. It is always attractive. It is always attractive, you know, it cannot be repulsive. Electrical force can be repulsive also, but this is always attractive. This is the property. Inverse square law, it follows 1 by r square rule. इनवर्स है, इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल है, स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसीलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ वी कॉल इट. इट इज सेंट्रल फोर्स. डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, सेंट्रल फोर्स का मीनिंग समझ लो. डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी along the line joining the two particles. जैसे ये पार्टिकल है, along the line joining like this. Central force is, direction of force will be along the line joining the both the particles. Weakest force in the nature. It is the weakest force in the nature. We have seen four fundamental forces. One was the gravitation, this one, another was the electrical force, and remaining two were the nuclear forces. तो सब एक strong nuclear force था, एक weak nuclear force था. तो this is the weakest one out of all the four forces. This is the weakest one, but it holds the universe together. You know, the universe पूरा stable है because of the gravitational forces. Earth is revolving around the sun because of the gravitational force. Moon is revolving around the earth because of the gravitational force. So all the forces are balanced in the universe, and universe is surviving without any problem for billions of the years. Sir. ठीक है, यहाँ तक ओके है, बोलिए. Sir, but is gravity really a force? Yes, of course, but that's what Newton has given you the force. क्या लिखा है हम लोगों ने? Yes, sir, but about it, I just thought about it. Is it just bent space-time, or is it actually a force? It is a force only. We are talking about the force. इतने सारे पॉइंट लिखेंगे, ये फोर्स के बारे में लिखेंगे. कंजर्वेटिव फोर्स है, अट्रैक्टिव है, ठीक है. तो दैट थियरी विच यू आर थिंकिंग दैट, हाँ, जस्ट मिनट. तो आप एक मिनट, कौन सा सिलेक्ट हो गया कलर, जस्ट मिनट. या तो विच वन यू वांट टू सी? This we did first, and then proper points लिखे उसके हमने. Okay, sir, I need below points. Okay. Then we written these points. सेंट्रल फोर्स का मतलब समझ में आ गया आपको? ओके, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये नीचे कर देते हैं. सेंट्रल फोर्स का डायग्राम मैंने ये बनाया था, अलोंग द लाइन जॉइनिंग. ठीक है,
Sir, in Alright, first so point, this refers to gravitational force, no? हाँ This. हाँ, these Okay. points about the gravitational force. This is the जो फार्मूला में लिखा है ना, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के पॉइंट है ये. These all are points related to Newton's law of gravitation force. ठीक है. तो Yes, sir. this is the question in front of you. Suppose we have the mass m. ये आपके पास एक मास है. इसमें से how much mass you should remove it and keep it nearby so that force between them is maximum. So my question is, let me repeat again. How much mass m should be removed from the mass capital M and kept nearby so that force between them is maximum? तो इसमें से सपोज स्मॉल m निकाल लिया हमने, तो कितना बचेगा? ये m minus m बच जाएगा ये, and small m keeping. तो this is the m1, this is the m2. तो इनके बीच में force should be maximum. So how much value should be m? M should be how much? Whether it should be 1/2 of the total mass or 1/3 of the total mass or 1/10 of the total mass. ऐसा कुछ रेशियो आ जाएगा. m ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, m/2 और m/3 like this. तो ये आपको निकालना है. तो how to do this question? कितना मास कैलकुलेट, कितना मास रिमूव करके पास में रख दें कि force between the removed mass and remaining mass is maximum. So the How smallest this amount question will possible. be done? Sorry, how to approach this question? तो पहले तो यही फार्मूला लिखेंगे. ओके, लेट स्मॉल m रिमूव किया हमने, तो फोर्स का फार्मूला लिखेंगे G m1 m2 by r स्क्वायर. तो m1 कितना है? जो रिमेनिंग मास है वो m1 है, और रिमूव किया वो m2 है, r स्क्वायर. नाउ दिस फोर्स शुड बी मैक्सिमम. कैसे निकालेंगे? दिस फोर्स शुड बी मैक्सिमम. व्हाट टू डू? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं मैं. ओके, लेट अस जस्ट डू G r स्क्वायर और स्मॉल m को अंदर मल्टीप्लाई कर लो. कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये हो गया ना. ठीक है ना. m को अंदर शिफ्ट कर दिया और G by r स्क्वायर का आ गया. तो दिस फोर्स शुड बी मैक्सिमम. व्हाट टू डू फॉर दिस? हाउ टू डू? हम लोगों ने पढ़ा था अप्लाइड मैथ, आई मीन मैथ पढ़ा था, मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स. याद है? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा df by dy by dx जीरो, ऐसे जीरो पढ़ा था. dy by dx, तो y की जगह तो फोर्स है, यहाँ पर x की जगह क्या है? स्मॉल m है. वेरिएबल इज स्मॉल m. ये जीरो होना चाहिए. फॉर मैक्सिमा df by dm शुड बी जीरो. ठीक है. तो डिफरेंशिएट करके जीरो करना है इसको. तो df, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है अभी. df by dm, तो ये तो कांस्टेंट है g एंड r स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा. we are doing this because this was asked in बोर्ड एग्जामिनेशन. 12th में क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज के लिए आया था. चार्ज का फार्मूला भी सेम रहता है, तो बेटर यू लर्न हियर इटसेल्फ, इट विल हेल्प यू आउट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. गुलाम फोर्स का भी फार्मूला सेम रहता है, तो वहां भी ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा. तो नाउ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? m कांस्टेंट है, स्मॉल m इज वेरिएबल है. वेदर यू कैन कीप आउट 1 kg 2 kg 3 kg, वो वही तो निकालना है. तो m का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1. तो यहाँ m का 1 हो जाएगा. कैपिटल M विल रिमेन सेम. m का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया. और इसका m स्क्वायर का क्या होगा?
एम स्क्वायर का एम के रिस्पेक्ट में क्या होगा बोलिए? व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ एम स्क्वायर? क्विक आंसर। Sir, 2m. यस 2m। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, लेफ्ट साइड में 0 है, ये वैल्यू, ये कंडीशन है मैक्सिमम निकालने के लिए, तो ये तो 0 हो गया। अब ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा, और m माइनस 2m इज इक्वल टू 0, और m इज इक्वल टू 2m, और m इज इक्वल टू m बाई 2। 50% मास निकालना पड़ेगा आपको, आधा मास निकालना पड़ेगा उसमें, आधा मास निकाल के रखना पड़ेगा, देन ओनली फोर्स विल बी मैक्सिमम। सपोज दिस इज 2 kg, तो 1 kg निकालना पड़ेगा, 50% ऑफ दैट, जो भी मास है उसका 50% निकाल के यू कीप इट नियर बाय, सो दैट बोथ विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, तो दैट्स हाउ मैथमेटिक्स वर्क्स हियर। ऐसे मैथमेटिक्स काम आती है यहाँ पर, मैक्सिमम मिनिमा से निकालना पड़ता है। ठीक है, क्या किया हमने, स्मॉल m ले लिया, या x ले सकते हैं उसको, निकाला, उसका फार्मूला लिखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिफरेंशिएट किया, m का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और m स्क्वायर का 2m हो गया, और मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy by dx 0 होता है, यहाँ पे y की जगह फोर्स है, x की जगह मास है, मास इज द वेरिएबल, फोर्स इज आल्सो द वेरिएबल डिपेंड अपॉन द मास। ठीक है, तो ये 0 हो गया, लेफ्ट साइड में 0, तो दिस इज 0, सॉल्व किया, स्मॉल m is capital M by 2, 50% mass you have to remove and keep it nearby, both will apply the maximum force on each other। 50% से कम किया तभी भी force will be less than maximum, and 50% से ज्यादा रिमूव किया तभी भी less than maximum। ये वैल्यू वापस m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, कैपिटल M के टर्म्स में आपका मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, कितना आएगा, तो ये m by 2 हो गया, ये भी m by 2, तो g m स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, कैपिटल M स्क्वायर बाय 4। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने से मैक्सिमम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। if they ask you find out the calculate the maximum force, तो फोर्स मैक्सिमम के लिए पूरे इक्वेशन 1 में from 1 F max will be g m minus m by 2 into m by 2 upon r square, it will be g m square, एक मिनट ये जगह बनाने दो, ठीक है, can you see it, upon 4r square। This is the extra point I told you, मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। उन्होंने कंडीशन पूछी है तो हमने केवल कंडीशन निकाली, m by 2। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन। Any difficulty here? No, sir. Okay, just 2-3 more minutes we'll utilize. Every minute is important. देखिए और क्या पॉइंट बता सकता हूँ मैं, देखो ये वाला पॉइंट बता सकता हूँ, मोर देन 2 मासेस है तो वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। देखो है ना, सपोज ऐसे ऐसे मासेस हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो सेंट्रल मास के ऊपर कितना नेट फोर्स होगा, तो ये ए वाला जो है ये बी है सी, ए वाला सी को इधर पुल करेगा, बी वाला इधर पुल करेगा ना, तो वेक्टर लॉ से निकाल लेंगे दोनों का डिफरेंस जो होगा हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। तो मोर देन इफ वन मास इज इंटरेक्टिंग विद द 2 अदर मासेस लाइक दिस, सपोज ऐसे ट्रायंगल पे है तो वेक्टर लॉ से निकाल लेंगे। तो दिस सपोज ए बी सी, सी पर कितना नेट फोर्स होगा, तो ये ए वाला उसको इधर पुल करेगा, बी वाला इधर, तो जो भी एंगल होगा वेक्टर लॉ से निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दैट्स व्हाट वी विल यूज इट if it is in the this point, if they are in line तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर देंगे, जैसा पहले बताया था मैंने, है ना, ऐसे है तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट कर देंगे।
यहाँ पर है, इधर वाला फोर्स माइनस इधर जो भी बड़ा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर दोनों इक्वल है तो 0 हो जाएगा नेट फोर्स सेंटर वाले के ऊपर। तो बेस्ड ऑन दिस इज द क्वेश्चन 8.12 क्वेश्चन है, देखो कि रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द सन। सपोज यहाँ पे अर्थ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे सन लेते हैं, तो यहाँ से फायर करते हैं इस तरफ सन की तरफ। दिस इज द सन, दिस इज द अर्थ। अर्थ का मास m1 ले लो, सन का m2 ले लो, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0। सपोज रॉकेट यहाँ कहीं पे पहुंच गया, m3 ले लो उसको, ये डिस्टेंस निकालना है, तो कहाँ पर उसका 0 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस r दी हुई है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो अर्थ तो रॉकेट को इधर पुल करेगी F1 और सन इधर पुल करेगा F2। तो नेट फोर्स F1 माइनस F2 शुड बी 0, है ना। तो F1 शुड बी इक्वल टू F2। आर यू गेटिंग और नॉट? एट Yes, किसी sir. पर्टिकुलर पॉइंट पे रॉकेट जब पहुंच जाएगा और दोनों उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो किस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है? जब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। F1 इज इक्वल टू F2। तो F1 इज द फोर्स ऑफ द अर्थ। कितना होगा रॉकेट के ऊपर? G, m1 मास ऑफ द अर्थ, m3 मास ऑफ द रॉकेट, डिवाइड बाय डिस्टेंस x स्क्वायर। ये x निकालना है हमें। सन का मास, अभी रॉकेट के ऊपर सन का मास m2 है, रॉकेट का m3 है, डिस्टेंस टोटल r दिया हुआ है, बट ये हमें ये डिस्टेंस चाहिए दोनों के बीच का, r माइनस एक्स। आर यू गेटिंग और नॉट दिस? ये वेक्टर Yes, का sir. वेक्टर का एप्लीकेशन है। तो ये मैं कैलकुलेशन बहुत लेंदी है इसमें, यू कैन डू इट। m3 तो कैंसिल हो जाएंगे, g भी कैंसिल हो जाएगा, रॉकेट का मास तो कैंसिल हो रहा है, g भी कैंसिल हो रहा है। मास ऑफ द अर्थ इज गिवन, कितना दिया मास ऑफ द अर्थ? मास ऑफ द अर्थ इज गिवन हियर, मास ऑफ द सन इज गिवन हियर, ठीक है। m1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स स्क्वायर निकालना है, m2 है r माइनस एक्स स्क्वायर। तो r भी दिया हुआ, r कितना दिया है? m1 एंड m1 m2 एंड r3, ऑल थ्री आर गिवन। टोटल डिस्टेंस दी हुई है, ये देखो डिस्टेंस ये दी हुई है 1 पॉइंट r, दिस इज नथिंग बट r, दिस इज नथिंग बट m1, दिस इज नथिंग बट m2। बट अभी कैलकुलेशन आपके हाथ में, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा लेंदी है यहाँ पर, बट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. वेक्टर लॉ लगा रहे हैं यहाँ पर हम लोग। और अगर रॉकेट कभी कभी ऐसे पूछते हैं कितनी मिनिमम वेलोसिटी से रॉकेट फायर करे कि रीचिंग टू सन, यहाँ तक पहुंच जाएगा, उसके बाद सन ऑटोमेटिकली उसको अट्रैक्ट कर लेता है ना। ये इसको नल पॉइंट भी बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। दिस कैन बी कॉल्ड नल पॉइंट एंड न्यूट्रल पॉइंट वेयर द नेट फोर्स इज 0। ठीक है, तो ये ट्राई कर सकते हैं, कैलकुलेशन लेंगी, बस मेथड समझ लीजिए आप। 12th क्वेश्चन है ये। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल। आई एम टेलिंग यू वेरी इजी मेथड टू सॉल्व दिस। टेक्स्ट बुक में बहुत लेंदी मेथड है, बट दिस आई विल टेल यू वेरी वेरी इजी मेथड, देन वील वाइंड अप। देखो, ये 3 इक्वल masses m and m, they are kept on the vertices of the equilateral triangle ABC। ठीक है। What is the force acting on the mass 2m placed at the centroid G? इस पर है, यहाँ पर एक 2m मास रखा है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? तो नेट फोर्स कितना होगा सेंट्रॉइड पे? देखो, एक ये सेंट्रॉइड का जो मास है 2m, एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, और एक फोर्स इधर लगेगा ऊपर, एक इधर लगेगा, तीनों 120 डिग्री ईच पर होंगे, ठीक है, और तीनों इक्वल होंगे। तो 120 पर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इसका जो नेट फोर्स है इधर आएगा, इसके इक्वल एंड अपोजिट। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ए का नेट फोर्स इज 0 बिकॉज 3 आइडेंटिकल फोर्सेस हैं 120 पर, ठीक है, 120 पर। तो 120 पर 2 इक्वल फोर्सेस होते हैं मैग्नीट्यूड में, उसका नेट फोर्स भी उतना ही आता है,
ऑलरेडी वेक्टर में हमने किया हुआ ये, तो ये और ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर if 3 equal forces are there on 120 degree each, तो 120 तो नेट फोर्स 0 आएगा। पॉलीगॉन लॉ से भी बोल सकते हैं, एक इधर आएगा वेक्टर, एक वेक्टर इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो क्लोजिंग साइड 0 हो गई, क्लोजिंग साइड आई नहीं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट इज देखो इजी मेथड आई एम टेलिंग यू। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, इफ दिस इज मेड 2m, ये 2m कर दो, इसको m और बढ़ा दो, प्लस m कर दो। Let's see what is the second part. What is the force if the mass at the vertices A is doubled? ये डबल कर दो, प्लस m कर दो, एंड साइड्स आर गिवन, ये जो है बीच की जो डिस्टेंस है ना, AG and BG and CG all are 1 meter each. Can somebody predict the easy method? इन्होंने वेक्टर से किया है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा आपके लिए, वो भी कर लेना, बट उससे इजी मेथड हो सकता है क्या, कॉमन सेंस से। देखिए मैं इजी मेथड बताता हूँ आपको। देखो प्लस m कर दिया इसको, तो ये पहले जो m था इनिशियली इट वाज 0 mm, और यहाँ पे 2m 0 था फर्स्ट केस में। नाउ यू आर व्हाट यू आर डूइंग, इसको 2m कर दिया, ये m, तो ये तो 0 है अभी भी। नाउ बचा क्या है, दिस m एंड ये 2m, दिस वन मोर m जो ऐड किया आपने, दैट m एंड 2m दे आर रिमेनिंग, है ना। लिसन केयरफुली, इन्होंने क्या किया था सेकंड पार्ट में, व्हाट दे आर टेलिंग यू, इसको डबल कर दो, यहां से देखो इसको डबल कर दो, 2 times 2m कर दो, व्हाट विल बी द नेट फोर्स नाउ ऑन दिस। तो व्हाट यू हैव टू डू, इसको डबल कैसे करना है, m एंड m ऐसे कर दो, ठीक है। तो नाउ ये सिचुएशन तो पहले फिर से 0 रहेगी, ये अभी रिमेनिंग इज व्हाट, m एंड 2m, ये 2 बचा है, एक m ऊपर है देखो ये वाला, और नीचे 2m 1 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो नाउ रिमेनिंग फोर्स विल बी दिस ओनली, अदरवाइज ये फर्स्ट केस में ये 0 हो गया, तभी ये दो पार्टिकल बच गए, दिस वन एंड अगेन दिस 2, ये वाले जो है m एंड m, दे आर अप्लाइंग द नेट फोर्स 0 ऑन दिस, तो इनका तो खत्म हो गया रोल, इनको हटा दो, अभी बचा क्या है m एंड ये 2m, इनके बीच का फोर्स बचा है, तो इनको अलग सेपरेट निकाल लो। अभी F विल बी G m इंटू 2m, डिस्टेंस इज गिवन 1 मीटर, ये डिस्टेंस कितना दिया आपका, 1 मीटर दिया हुआ है, 1 स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 2gm स्क्वायर अपवर्ड, इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये वाला उसको, ये जो m बचा है वो उसको ऊपर खींचेगा, अपवर्ड इज विच डायरेक्शन दे हैव टेकन, y डायरेक्शन, तो j कैप, F विल बी 2gm स्क्वायर j कैप। ये देखो इन्होंने आंसर तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2gm j कैप, पर इन्होंने कंपोनेंट करके निकाले सब, लेंदी मेथड लगाया काफी, तो यू डोंट हैव टू डू, उसको ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट केस से ये 0 हो गया, रिमेनिंग मास इज m, and again this m will apply the 2m on force on 2m, this much only, ब्रेक कर लिया उसको, 2m को, ऊपर वाले 2m को ब्रेक कर लिया, m प्लस m, क्लियर और नॉट? Yes, sir. अदरवाइज यू कैन फॉलो द टेक्स्ट बुक मेथड, वेक्टर से उन्होंने किया है पूरा, उसमें कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, ये फोर्स फिर ये फोर्स फिर ये फोर्स, तो लेंदी मेथड, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने आंसर को, है ना, इस मास 2m को ब्रेक करके m प्लस m and remaining other 2 will apply the net force 0, remaining will be m and 2m that will apply the force this much upward, ये m अभी इसको इतने फोर्स से आप खींचेगा, ठीक है।
So this is useful for competitive examination. ये shortcut method अगर आपको आ गया तो it will save your time. You can remember the answer is very easily also. You don't have to solve it. I will tell you similar situation somewhere else also. Next class में बोलूंगा अभी आपका time हो रहा है. I'll teach you this method again, how to break the masses and charges and get the quick answer. I'll teach you again some more example. Shall I end it now? Sir, Yeah. will we be I mean, will we be coming to know about all the theories of Einstein this year or the next year? No, theories of Einstein are only Einstein ka mass energy relation we are going to use in the 12th standard. Other Sir, theories are not there. Nothing about space-time and gravity No. according to space-time? No. Okay, sir. Only E is equal to mc square we are going to use in the 12th standard. All right. Chalo. Okay. Thank you. Thank you, sir. All right.